Now let's start the exercise of chapter number 7. First is based on MCQ. Question number 1. The science which deals with the study of tribal culture and society is known as, the correct answer is anthropology. The second question is, the text which mentions the Gond kingdom of Grahkatanga is the correct answer is Akbar Nama. The third question is, the Ahom king who supported the compilation of Buranjis was, the correct answer is Rudra Singha. Next is Mr. Mir Jumla was the general of, the correct answer is Aurangzeb. Now come to the question number 2 of true and false. First is, in the Gond kingdom, Barots were subdivided into Chaurasi. It is false. Because in the Gond kingdom, Chaurasi were subdivided into Barots. Okay, not Barots is subdivided. Here you have to keep it in your mind. Question number 2. The Gond kingdom was divided into 7 clans. It is false. Gond kingdom was divided into more than 7 clans. It is also false. Next, third number is, the pike system followed by the Ahoms involved maintaining a standing army. It is also false, because the pike system followed by the Ahoms involved providing compulsory labor and service to the kingdom. Okay. Next, question number 4. Gond chieftains often assumed Rajput titles. Yes, it was true. Question number 5. The Ahom society was divided into clans. Yes, it is also true. Now come to the question number 3. Answer the following question in one sentence. इसमें क्या है? First is, what is the meaning of the term patrilineal? तो patrilineal का मतलब क्या है? A patrilineal system is one in which the inheritance of property, authority, etc. is passed on one from father to son. Father से son को जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी अथॉरिटी जाती है वो कहलाता है पैट्रिलिनियल. ठीक है. नेक्स्ट इज, विच रीजन्स डिड द वास्ट मंगोल एम्पायर एनकम्पास? कौन से चंगेज खान जो मंगोल रूलर था उसने कितने रीजन को ऑक्यूपाई किया था? तो यहाँ पर है, चंगेज खान ब्रॉड सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न चाइना, ईस्टर्न पर्शिया अंडर मंगोल रूल, एंड देयर आफ्टर द रेस्ट ऑफ चाइना, तिब्बत, पर्शिया, इराक, अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया माइनर and all of the southern Russia were added to the Mongol Empire. तो अब इतना 2 लाइन में इतना भी ना लिखो, ऐसे लिखना नहीं चाहते तो सिर्फ 1 लाइन में भी आप लिख सकते हो. सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न चाइना, पर्शिया, ईस्टर्न पर्शिया, फिर तिब्बत, चाइना, इराक, एशिया माइनर, सदर्न रशिया एडेड टू द मंगोल एम्पायर. तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो. हु वेयर द भूयास? भूया कौन थे? When the Ahom crossed into the northeastern India and settled down in the Brahmaputra valley in the 13th century, they suppressed the locally powerful landlords called the Bhuyas. मतलब यहाँ पर भूया का literally meaning है local landlords near the Brahmaputra valley. ठीक है, उनको इस नाम से जाना जाता था वहाँ पर, भूयास के नाम से. Question number 4. What was खेल in the Ahom society? Ahom society में खेल किसको कहते थे? तो the Ahom society was divided into clans and that is known as Khel, which controlled several villages and communities, and even the king paid heed to their decision. जो बहुत सारे villages को ये जो clan है कंट्रोल करती थी और किंग भी उनके ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर ध्यान देता था. 5th number, what was one of the greatest achievements of the Ahoms?
अहोम्स के सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था? तो यहाँ पर दैट वाज द मेंटेनेंस ऑफ द पाइक सिस्टम ऑफ एनफोर्स्ड लेबर विच proved useful because the Ahoms did not need to maintain a regular standing army. जो इनका पाइक सिस्टम था ये जो बहुत ही यूज़फुल होता था, क्योंकि इनको फिर स्टैंडिंग आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यही जो पाइक थे वो जो कि ना कि नॉबल होते थे, ना प्रेस्ट होते थे, या जो स्लेव नहीं होते थे, उनके अलावा जो लोग होते थे वो अपने राजा को अपनी सेवाएं देते थे, या तो कुछ कम्युनिटी बेस्ड जैसे नदी या रोड या ब्रिज बनाने में, और उनके साथ मिलिट्री, जब उनको ज़रूरत पड़े राजा को तो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो इन्हीं को ही हम पाइक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th. Answer the following question in brief. Question number 1. What does Akbarnama tell us about the kingdom of Grahkatanga? तो ये क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी, आंसर यहाँ से आप देखते जाओगे। तो आपको लिखने में बाई चांस आपका PDF नहीं मिला तो आप वीडियो में से भी आंसर देखकर लिख सकते हो। क्वेश्चन मैं बोलती जाऊंगी अपने साइड से, आप क्वेश्चन देख लेना, आंसर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ अकबरनामा में क्या ग्रहकटंगा के बारे में क्या बताया गया? तो द अकबरनामा मेंशंस द गॉन्ड किंगडम ऑफ ग्रहकटंगा. इट कंप्राइज्ड 70,000 villages. It had a well structured administrative system. It became a rich kingdom by selling wild animals to other kingdoms. मतलब ये रिच कैसे बढ़ गया? अपने जानवरों को बेचकर, वो जो पालते थे एलिफेंट्स हैं, घोड़े या बहुत सारे डोमेस्टिक्स हैं, उनको ये किंगडम्स में बेचकर काफ़ी रिच बनते गए. क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? Write a short note on Queen Durgavati. अब दुर्गावती के बारे में यहाँ पर लिखना है. तो ये दलपत, द सन ऑफ कॉन्ड किंग संग्राम शाह, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती. संग्राम शाह का जो बेटा था दलपत, उसकी शादी दुर्गावती से हुई. द डॉटर ऑफ अ चंदेल राजपूत. In 1548 CE, when Dalpat Shah died, Rani Durgavati assumed the reins of the government because her son was a minor. तो उसने अपना संभाल लिया गद्दी को. When her kingdom was attacked by the Mughals under the Afzal Khan, she put up fought bravely but was defeated. उसने बहुत साहसी तरीके से उनसे लड़ाई की मुगलों से, हाँ, बट हार गई. She and her son died resisting द मुगल्स. उनसे लड़ते हुए वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए. अब ना दो क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अहोम्स एंड द मुगल्स. अहोम्स और मुगल्स के बीच कैसा रिलेशन था? तो द अहोम्स वेयर in 1662 see, the Ahoms kingdom was attacked by Mir Jumla, Mughal emperor. तो ये मुगल एम्परर औरंगजेब जनरल कौन था? वो मीर जुमला मुगल एम्परर औरंगजेब का वो जनरल था. ही डिफीटेड देम and acquired a lot of treasures. However, Mughal control could not last because heavy rainfall led to the breakout the epidemic in their camp. The Ahoms reclaimed control over their kingdom. फिर से Ahoms ने उसको वापस ले लिया. तो ये 1662 में अहोम किंगडम, मतलब उनके साथ रिलेशन कैसा था? तो
कहा जाएगा कि इस तरह इसने 1662 में उसके ऊपर आक्रमण किया और काफ़ी धन संपदा जो अहोम की थी उसने हड़प लिए मुग़लों ने, और साथ ही साथ किंगडम को भी अपने अंडर में ले लिया। लेकिन जो अचानक से काफ़ी वर्षात आई और वो वहाँ पर उनके कैंप में एपिडेमिक फैल गया, महामारी फैल गई, और फिर अहोमों ने मुग़लों से फिर अपने रेजिम को फिर वापस, अपने शासन को फिर से वापस उनसे ले लिया, किंगडम को वापस उनसे ले लिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द पाइक सिस्टम, डिफाइन द पाइक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। द अहोम स्टेट built a system of providing labor known as the pike system. Labor system जो थे उन्होंने जो प्रोवाइड किया था उसको pike system करते हैं। Every male member of the village aged between 15 and 50 years had to provide service to the kingdom, for which they received non-transferable and non-hereditary lands. अपनी सर्विस के बदले उनको लैंड मिलेगा जो कि ना तो ट्रांसफरेबल होगा और ना ही हेरिडिटरी होगा। ये नहीं कि उनको लैंड मिल गया तो उनके मरने के बाद उसके बेटे को मिल जाएगा, फिर उसके बेटे से उसके बेटे, ऐसा नहीं। उनके मरने के बाद फिर वो जो है लैंड वो वापस राज्य को ही चला जाता है। Pikes were involved in constructing public works or serving in the military. This enabled the Ahoms to do without regular standing army. ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो 5th है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर को बताना। फर्स्ट, इन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी जब चैप्टर्स के शुरुआत में हमने बहुत सारे उनके बारे में चर्चा की थी, आप यदि ध्यान से वीडियो ने आपने देखा होगा तो सारे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या पॉइंट होगा, दे वेर एगलिटेरियन इन नेचर एंड नॉट डिवाइडेड बाय क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शन। वो सारे इक्वल होते थे और उनमें आपस में कास्ट और क्लास नहीं होता था। Many tribes belong to clans who trace their descent to a common ancestor or kin. This made bond together closely. Kinship bond से वो बंधे हुए थे। मीन्स क्या था कि बहुत सारे क्लैन जो थे वो एक ही ग्रुप से, मतलब किसी ना किसी तरह से उनसे जुड़े हुए थे, उनका रिलेशन था, फैमिली रिलेशन था। हाँ, फिर ईच क्लैन वॉज हेडेड बाय अ ट्राइबल चीफ। हर एक क्लैन में एक ट्राइबल चीफ उसका हेड होता था। दे फॉलोड देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। और सबको उसको फॉलो करना था, उसका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन को फॉलो करना होता था। मोस्ट ट्राइब्स वेयर नॉमेडिक। बहुत सारे ट्राइब्स उसमें नॉमेडिक थे। मूव्ड अबाउट विद देयर कैटल, प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लिव्ड इन आइसोलेटेड एरियाज एंड प्रैक्टिस सर्टेन क्राफ्ट्स फॉर अर्निंग एडिशनल इनकम। फिर they lived on lands which were commonly owned and they made full use of the natural resources available from the forest. अब जो लैंड होता था वो ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही किसी का होगा, एक किसी फैमिली का होगा, नहीं, पूरे ग्रुप कम्युनिटी को वो बिलोंग करता था, पूरे वेयर कॉमनली ओन्ड। हाँ, और सारे ये जो नेचुरल ये रिसोर्सेस उनकी फुल यूज़ होती थी। फिर their societies were patrilineal, or patrilineal means in which inheritance or property authority passed from father to son, or else matrilineal, matrilineal mother के side से, in which inheritance or property authority passed from mother to daughter। मतलब जो मैट्रिलिनियल है वो मदर से डाउटर को जाता है, जो पैट्रिलिनियल था वो फादर से सन को जाता है। ठीक है, इस तरह से उनकी सोसाइटी थी। कुछ एक थे जो मैट्रिलिनियल थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? हु वेयर द गॉन्स? हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रकटंगा ऑर्गेनाइज्ड? कौन थे गॉन्स और कैसे उनका ऑर्गेनाइज होता था ग्रकटंगा का? ठीक है, तो गॉन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ मिडीवियल India, where the Gonds
They lived in an area called Gondwana land or the country inhabited by the Gonds. उस लैंड को क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड, जहाँ पर ये कम्युनिटी लिव करती थी. द अकबरनामा मेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गॉन्ड किंगडम ऑफ कटंगा. तो अकबरनामा में इसका गॉन्ड किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया और उस किंगडम का जो था वो उसका नाम था ग्रह कटंगा. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल division called Grass and each Grah has administered by a particular clan. Each clan had its own राजा और राय had अपना उनका एक जो चीफ होता था वो राजा और राय कहलाता था. The Gars were divided into units of 84 villages. और जो एक ग्रह में तो 84 villages होते थे जिसको क्या कहा जाता था? 84, known as 84, which were further subdivided into बारोत्स. और फिर उसको सब डिवाइड कर दिया जाता था बारोत में. अब बारोत में कितने होते थे? 12 विलेजेस. तो होल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू गर इज डिवाइडेड इनटू 84 इज डिवाइडेड इनटू बारोत्स. तो इस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. How was the administration of the Ahom state organized? Ahom state का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता था? तो यहाँ देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Ahom state was organized using the पाइक सिस्टम. एकदम ये बहुत अच्छे तरीके से ये पाइक सिस्टम याद कर लोगे आप लोग. दो तरह के क्वेश्चन है. व्हाट इज पाइक सिस्टम? तो ये याद करोगे तो व्हाट इज पाइक सिस्टम तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद लिख सकते हो. तो अंडर दिस सिस्टम वेरी मेल मेंबर ऑफ द विलेज बिटवीन एज ऑफ 15 and 50 years who was not a noble, priest or high caste or slave had to provide सर्विस टू द किंगडम. अपने किंगडम को वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, सेवाएं देते थे. In lieu of the services rendered to the Pikes received 2 acres land which was neither transferable nor hereditary. अब ये सर्विस के द्वारा जो उनको रिटर्न मिलता था 2 acres रिसीव्ड होता था वो 2 acres लैंड. और वो 2 acres लैंड ट्रांसफरेबल भी नहीं होता था और ना ही हेरिडिटरी होता था. ठीक है. नेक्स्ट है पाइक्स participated in the construction of public works or served in the military. This system proved useful particularly since the Ahom did not maintain a regular standing army. तो बहुत पर्टिकुलर मतलब यूज़फुल ये सिस्टम था क्योंकि अहोम्स को ये एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखती थी. अब जब ज़रूरत पड़ती थी तो यही पाइक उनकी अपनी सेवाएं उनको देते थे राजा को एज ए आर्मी. Now come to the question number 4. What is question number 4? How did tribal societies change after they came in contact with caste based societies? कैसे चेंजेस आया जब वे कांटेक्ट में आए कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ या वर्ण सिस्टम वाले सोसाइटी में आए. ठीक है. समाज के जो धारा परंपरागत जो चलती हैं समाज उसमें वो शामिल होने लगे. तो क्या चेंजेस उनमें आया? तो देखो changes through the caste and tribe interaction. The tribal and nomadic communities who did not adhere to the Varna system at times came into conflict with caste based societies. जो नहीं अपना सकते थे वो उनके साथ उनका झगड़ा हो जाता था कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ. था द कास्ट बेस्ड सोसाइटी कॉज ट्राइबल सोसाइटी चेंज इन अ वेराइटी ऑफ वेज. बहुत तरीके से उन्होंने चेंज किया सोसाइटी को. ट्राइबल सोसाइटीज़ है वो कैसे. मेनी ट्राइब्स अडॉप्टेड द कास्ट सिस्टम. बहुतों ने इसको अपना लिया. एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन प्रिवेलेंट इन सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटीज़. अब फिर क्या हुआ? ट्राइबल कस्टम्स एंड रिचुअल्स वेयर एब्जॉर्ब्ड इनटू हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन. और साथ ही उनके जो कस्टम्स थे जो रिचुअल्स थे हिंदू ट्रेडिशनल में उसको एब्जॉर्ब कर लिया. बहुत सारे हिंदू ट्रेडिशनल में उनको
जगह दी जाने लगी। फॉर इंस्टांस सम रिचुअल ट्राइबल गॉड्स एंड गॉडेस वेर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हिंदू पैंथियन, मतलब हिंदू पंथ के साथ बहुत सारे जो गॉड्स एंड गॉडेस हैं उनको शामिल किया जाने लगा, मतलब उनके गॉड्स एंड गॉडेस हिंदू में भी उनको पूजा जाने लगा। तो इस तरह से जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी कास्ट बेस्ड सोसाइटी से मिलने के बाद उसमें चेंजेस आए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में लिखोगे, वर्ड मीनिंग विथ वर्ड मीनिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।